નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. અને લોકમંચમાં આજે વાત કરવી છે નેપાળની, કારણ કે નેપાળમાં જે પ્રમાણે હિંસાની પાછળ રાજકારણ છે, અને સવાલ એ થાય કે આ હિંસાને રાજકારણની પાછળ કયું કારણ છે એની ચર્ચા કરવી છે. કારણ કે નેપાળ સરકારે જેવો સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો એવો જ વિરોધ ચાલુ થઈ ગયો. ઝેન ઝી કહેવાય છે, એણે વિરોધ કર્યો અને સંસદ સુધી પહોંચી ગયા, તોડફોડ કરી, આગચંપી કરી, અને સરકારે યુટ્યુબ, વોટ્સએપ સહિતના જે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો એને લઈને ક્યાંક રોષ જોવા મળ્યો. નેપાળ સરકાર સામે આ ઝેન ઝી રસ્તા પર ઉતર્યું, અને ખાસ તો હિંસક પ્રદર્શનને કારણે બહારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ નેપાળમાં જોવા મળી રહી છે. અને ખાસ તો કાઠમંડુ, એમાં જે હિંસા ફાટી નીકળી એને લઈને સમગ્ર વિશ્વને ક્યાંક ચોંકાવી દીધું. અને નેપાળી પીએમ ઓલીએ રાજીનામું આપ્યું. ત્યારબાદ હવે રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્રએ પણ રાજીનામું આપ્યું છે. અને ઘણા બધા મંત્રીઓ છે જેમને કદાચ જેમની પર હુમલો થઈ રહ્યો છે, જેમના ઘર પર હુમલો થઈ રહ્યો છે, અથવા તો તેઓ પણ રાજીનામા ધરી રહ્યા છે. એક જોરદાર રાજકીય અસ્થિરતા નેપાળમાં જોવા મળી રહી છે. અને આમ તો મૂળ કારણ મેં કહ્યું એમ કે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ છે, પણ એ સિવાય પણ ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે છે, અને છે એની ચર્ચા કરીશું. પણ દેખાવના અન્ય કારણોની વાત કરીએ, ક્યાંક બેરોજગારી અને ભ્રષ્ટાચાર આ સરકારમાં, જે ઓલી સરકારમાં વ્યાપ્યો છે, એનાથી લોકોમાં અસંતોષ હતો. અને એમાં પાછું આ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો એટલે આને વેગ મળ્યો છે. અને ઝેન ઝીના વિરોધ સામે નેપાળ સરકાર આખરે ઝૂકવું પડ્યું, અને સોશિયલ મીડિયા પર જે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યા હતા એ પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવ્યા. બીજી વસ્તુ એ છે કે નેપાળમાં સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ કેમ મૂકવામાં આવ્યો એની પાછળના પણ કારણો છે. બીજું કે આ જે વિરોધ પ્રદર્શન અથવા જે આ ક્રાંતિ થઈ ઝેન ઝીની, તો સૌથી પહેલાં આપણે બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, અને હવે જ્યારે નેપાળમાં આ ક્રાંતિ જોવા મળી રહી છે, તો શું આના તાર એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે? અને બીજું, ભારતના પડોશી દેશો છે એમાં સત્તાનું સિંહાસન કેમ ડગમગી રહ્યું છે એ પણ સવાલ. અને આ જ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરવી છે. અને ચર્ચા કરવા માટે જ મારી સાથે જોડાયા છે વિશ્લેષક, દિલ્હીથી મારી સાથે જોડાયા છે ઉમર ગાઝી મારી સાથે છે. ઉમરજી, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. बहुत बहुत धन्यवाद. સાથે જ યુથ एक्टिविस्ट काठमांडू डॉक्टर कोमल फुयाल मारी साथे છે. कोमल जी, आपका भी स्वागत है लोकमंच में. थैंक यू सो मच. या और विश्लेषक काठमांडू से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महेश पोंडियाल. महेश जी, आपका भी लोकमंच में स्वागत. नमस्कार, धन्यवाद. यस, कोमल जी, शुरुआत आपसे करता हूं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा का मुख्य कारण, उसके बाद भी राष्ट्रपति ने भी, रामचंद्र जी ने भी इस्तीफा दे दिया. क्या लगता है सर जी कि ये कोई राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा है या और भी कुछ कारण हो सकता है? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप है, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, और युवा पीढ़ी में असंतोष दिखाई दे रहा है. मुख्य कारण क्या लगता है आपको, कोमल जी? देखिए, ये बात क्या है कि इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल कॉजेज. उसके साथ हमारे लिए वो लोकल कॉजेज भी है. जनता में फ्रस्ट्रेशन है, रोजगारी नहीं है, मास माइग्रेशन, अब्रॉड स्टडीज, ये कारण है, ये मौजूद कारण है. लेकिन यहाँ पे वो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो राजनीतिक अपहीवल्स आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट रहा है. पहला तो श्रीलंका का वो जो यूथ मूवमेंट, रेसिस्टेंस पॉलिटिक्स था, उसका असर हमने बांग्लादेश पे देखा. फिर बांग्लादेश में जो हुआ उसका असर काठमांडू पे दिखने लगा. और जिस तरह से ये मूवमेंट ये पिछले 28 घंटे पे काठमांडू पे हमने जो विटनेस किया है, इसको देखकर ये लगता है कि ये कुछ एक दो दिन का मसला नहीं है. ये इसके लिए कुछ डिजाइन, they must have given some time to design this movement. Otherwise such movements are not possible. इस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई शक्ति का हाथ है. जैसा हम देख रहे हैं सत्तारूढ़ घटक के जो नेता है, उन लोगों को आक्रमण हुआ है यहाँ पे जेनजी के तौर पे. फिर दूसरे तरफ से हम देख रहे हैं कि जो सत्ता में नहीं थे उन लोगों को भी आक्रमण हुआ है. लेकिन there are certain political parties which are completely safe in this movement. So इससे
कुछ इंडिकेशन मिलता है कि इस पे बहुत एनर्जी खर्च किया है और ये बहुत बेखूबी डिजाइन पे हुआ है। पर्टिकुलर ये मतलब एक डिजाइन से हुआ है, आप जिस तरह बता रहे हैं। पर क्या लगता है कि राजनीति की एक नई शुरुआत लग रही है जेनजी के आंदोलन के बाद? ऐसा लगता है कि एक नेपाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, कोमल जी? अभी तो ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते हैं। ये कवर कवर तो बहुत अच्छा जेनजी का कवर दिख रहा है। दोज पीपल बर्न आफ्टर 1997 दे हैव कम टू द रोड। जब हम देखें तो कल का माहौल कुछ अलग था और आज का माहौल कुछ अलग है। कल रास्ते पे जेनजी थे, कल देयर वाज जेनोसाइड, more than 40 people unofficially they say more than 40 students were shot dead. Official आंकड़ा बताते हैं कि 21 लोग yesterday they were killed. 21 people were killed yesterday. But जब हम आज का सीन देखें तो आज का सीन कुछ अलग ही है और इसको कुछ अलग तरह से समझना चाहिए। अच्छा, किस तरह से अलग है? मान लो कि आपने जिस तरह से बताया कि जैसे मंडे की बात करते तो एक सिनारिया अलग था। जेनजी पूरे रास्ते पर उतर आए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि संसद भवन तक उन्होंने कूच कर ली, तोड़फोड़ कर ली, आगचंपी कर ली। फिलहाल मंडे के बाद ट्यूसडे में क्या फर्क आया है और जेनजी के अलावा कौन कौन से लोग हैं जो इस मूवमेंट में जुड़े हैं, कोमल जी? ये जेनजी का मांग एक था कि ये गवर्नमेंट करप्ट है, इसको पीएम खड़ग प्रसाद ओली को राजीनामा देना चाहिए, ये उनका मांग था। जब खड़ग प्रसाद ओली जी ने 2 PM में जब ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, even after his resignation was announced in the media, this movement नहीं रुका। लेकिन ये आगजनी का श्रृंखला शुरू हुआ। हमारे सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, हमारे पार्लियामेंट पे आगजनी किया और ये बड़े बड़े से नेता जो लोग जो है उन पे अटैक किया। प्रतिपक्ष के नेता के घर पे, माधव कुमार नेपाल जी के घर पे अटैक किया और शेरबहादुर देउवा जी के घर पे अटैक किया। जलनाथ खनाल जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको कोई ताल्लुक नहीं था। जब उनका मांग जो संबोधन हो चुका है तो ये क्या है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। It has been inspired by some other forces and we have to take serious note of those things that are taking place in Kathmandu. ओके, महेश जी, सवाल यह है कि रेजिग्नेशन जो पीएम ओली ने दे दिया, उसके बाद भी जो मतलब राष्ट्रपति ने भी, रामचंद्रन ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। तो महेश जी, सवाल यह है कि जेनजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के बीच ये जेनजी पैदा हुए है। दूसरा कि उसके साथ में ही ये जेनजी बड़ा हुआ है। क्या लगता है कि जेनजी का इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा? सर, क्वेश्चन के लिए शुक्रिया। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, 2005 में यहाँ पर बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल चेंज के लिए मूवमेंट हुआ। जिस वक्त यहाँ मोनार्की हुआ करती थी तो यहाँ के मोनार्क भी असैसिनेट हुए। उसके बाद एक बहुत बड़े आंदोलन के तहत यहाँ पर रिपब्लिक की घोषणा की गई और नई संविधान सभा की घोषणा हुई और एक नया संविधान बनाया गया। उस समय आज के जो जेनजी जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उस समय बच्चे थे तो घर में ये गणतंत्र की बात सुनते हुए वो बड़े हो गए। उस समय उनके अंदर इतनी सपनों की बात हम लोगों ने की, इस जनरेशन ने की कि अब ये होगा, वो होगा, नेपाल स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगा और किसी पड़ोसी देश से पीछे नेपाल नहीं होगा। वो ड्रीम के साथ ये बच्चे पैदा हुए और ऐसे ही इनका पलना और पालन पोषण भी हुआ। लेकिन 20 ईयर्स उससे 2005 से 20 ईयर्स हम आ गए हैं, अभी 2025 में है और 20 वर्ष के दौरान भी उन लोगों ने ये नहीं देखा कि वो सपने जो है उनको फूलते हुए, फलते हुए, उनको मेटेरियलाइज हुए, उन्होंने नहीं देखा। जैसे देश की जीडीपी अभी भी साउथ एशिया में सबसे कम है। देश की ग्रोथ रेट देखिए तो 2.5% के आसपास अपनी ग्रोथ रेट इस देश की। बेरोजगारी की बात करें तो 60%, या ऑफिशियल आंकड़े 20% ऐसा बोलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत फर्क है। 60% यहाँ पर
या बेरोजगार है या सेमी बेरोजगार है। तो इन सारे परिस्थितियों के चलते ये जो हमारे जेनजी है, इनको ये भनक हुई, इनको पता चला कि ये कुछ नेरेटिव से कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि एक दिन में आप देखिए हमारे यहाँ के एयरपोर्ट से करीब 2000 पीपल माइग्रेट हो रहे हैं एक ही दिन में। अच्छा। यहाँ के पासपोर्ट बनाने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर आप जाकर के दिन में ऑब्जर्व करेंगे तो एटलीस्ट 1500 पीपल नए पासपोर्ट बनाने के लिए वहां पर आवेदन लेकर के जाते हैं। तो औसत में 1500 से 2000 पीपल एवरी डे दे आर लिविंग द कंट्री इन गोइंग अब्रॉड। तो क्यों ये सब हो रहा है? जब प्रोमिसेस तो क्या थी कि ये देश स्विट्जरलैंड बन जाएगा, पर कैपिटा इनकम में हम आगे आएंगे और ग्रोथ रेट 7% 8% होगा। ये सारे के सारे नैरेटिव जब फेल हुए और हमारे जेनजी ने इस देश को इंडिया से कंपेयर किया होगा और बाकी विदेशों से कंपेयर किया होगा, वो इन्फॉर्म्ड है, तो उनको ये भनक लगी कि कुछ नहीं हो रहा है। और उन्होंने बहुत इंतजार भी किया कि कोई तो करेगा, कोई आएगा, हमारे अग्रज है, बुजुर्ग है, लीडर्स है, पार्लियामेंट है, कुछ तो करेगा। लेकिन जब उनको भनक हुई कि कुछ नहीं होने वाला है, तो वो प्रोएक्टिव हो गए, सड़कों में आ गए और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन था। मुझे लगता है उसी का उभार है ये, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है। बिल्कुल। क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में कितना इम्पैक्ट रहेगा और इसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा समाज पर, पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिशियन पर या वहां की गवर्नमेंट पर? इसका तो मल्टीपल डायमेंशन में इसका रेमिफिकेशन मैं देख रहा हूं। पहले तो एक भाष्य, एक नेरेटिव क्या बना हुआ था कि देश को जो नेतृत्व करने वाला जो वर्ग रहता है वो केवल बुजुर्ग होंगे, अनुभवी लोग होंगे, सीजन पॉलिटिशियन होंगे, ऐसा सुनते हुए और इसको झेलते हुए हम आए। अब जाकर ये नैरेटिव भी बदल चुका है कि आज से कम नेपाल में कि देश को लीड करने वाला केवल बुजुर्ग होगा, अनुभवी होगा, सीजन पॉलिटिशियन होगा, ये बात नहीं है। ये नैरेटिव उखड़ करके इन लोगों ने फेंक दिया, पहली बात। दूसरी बात, मैं क्या देख रहा हूं कि इसका एक ग्लोबल रेमिफिकेशन भी रहेगा, क्योंकि शायद दुनिया में एक ये पहला ऐसा उदाहरण है कि जेनजी के आंदोलन के चलते एक पूरी की पूरी सरकार बिखर गई। ये पार्लियामेंट बिखर गया, कोर्ट बिखर गया, सब मैंने सब एक से बाद एक यहाँ पर इस्तीफे, राजीनामे आ रहे हैं। तो दुनिया के अंदर एक ऐसा प्रेसिडेंस है। तो इसके चलते आगे नेपाल से बाहर के मुल्कों में भी, देशों में भी ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहां के भी लोगों को लगेगा कि हम यूथ है तो हम कर सकते हैं। तो इसका एक ग्लोबल रेमिफिकेशन आएगा, मुझे ऐसा लगता है सर। चलो चलो ओमर जी, ये अहम सवाल है कि जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह महेश जी ने बताया कि ग्लोबल इफेक्ट इसकी देखने को मिलेगी, श्रीलंका, उसके बाद कोलंबो, बांग्लादेश, क्या लगता है यूथ मूवमेंट है वो लगता है कि कहीं से कहीं कनेक्टेड है या आने वाले दिनों में इसकी इफेक्ट अलग अलग देशों पर देखने को मिलेगी? जियो पॉलिटिक्स सिनारिया किस तरह देख रहे हैं गाजी साहब? देखिए, सबसे पहले जो एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं कि जैसे केओस कह सकते हैं, एनार्की कह सकते हैं। द पार्लियामेंट हैज बीन सेट ऑन फायर। जो मिनिस्टर्स हैं दे उनके रेजिग्नेशंस आ रहे हैं बहुत तेजी से। पीपल हैव डाइड। तो उसको फेस वैल्यू पर हम एक यूथ मूवमेंट कहकर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, विच इज क्योंकि आप देखो, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हम बात करें, अभी आर्मी ने पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। तो एक कोई उसका जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो कुछ बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसके बैकग्राउंड क्या है। जैसे कोमल जी ने भी कहा कि ये एक दिन की तैयारी नहीं है। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन के चार्जेस, जो कि बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, पिछले कम से कम 10 साल से, 2015 के बाद से तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये जो सोशल मीडिया उन्होंने बैन करा, और इसको हम सोशल मीडिया कह रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, उन्होंने लिंक्डइन भी बैन किया, उन्होंने यूट्यूब भी बैन किया। अच्छा, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बात ध्यान में रखें कि उन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारी जो, और स्नैपचैट, ये सब बैन कर दिया, लेकिन टिकटॉक बैन नहीं किया। आप अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके पीछे कि आपको डेटा की ब्रीचिंग से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो डेटा चाइना के पास जा रहा है तो उससे शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं थी सरकार को। तो वहां एक नजर आता है कि थोड़ा प्रो चाइना रुख सरकार का था। और जाहिर सी बात है, हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भी कोशिश करता है फॉरेन तरीकों से। अभी तक नेपाल में इसका कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक सामने नहीं आया है, बट एक टेम्पलेट हमें दिख रहा है
बांग्लादेश के थ्रू एक के और श्रीलंका के थ्रू कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वेस्ट का रहता है। तो ये जो इन्होंने सोशल मीडिया बैन किया, एक तरह से इन्होंने वेस्ट को एक गिफ्ट दे दिया, एक प्लेटर पे दे दिया अपना पूरा कंट्री कि ठीक है, लोगों में वैसे ही आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था, और ये ट्रिगर पॉइंट बन गया जेनजी के लिए। और खाली जेनजी की बात नहीं है, जेनजी के अलावा जो काफी सारे बिजनेसेस चल रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। इट्स नॉट जस्ट कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, उसमें बिजनेसेस के लिए भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट बहुत ज्यादा डेंजरस है और ग्लोबल रैमिफिकेशंस हैं। जैसे महेश जी ने भी कहा कि दूसरी कंट्रीज भी एक प्रेसिडेंस ले सकती हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रिजल्ट नहीं निकला इस तरह से। प्रॉब्लम्स इस तरह से मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होती हैं कि आप जाकर पार्लियामेंट को यू सेट फायर टू द पार्लियामेंट, क्योंकि उससे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रिजर्व रहा है। तो ये मुझे लगता है चाइना और यूएस का भी इसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी वॉर भी चल रही है। अच्छा, लगता है कि ये जो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता हुई है गाजी साहब, उसके अस्थिरता चीन के लिए एक अवसर पैदा हो गया है कि अपना प्रभाव बढ़ाए चीन। ऐसा एक अवसर चाइना को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि अभी जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं शायद प्रो चाइना थोड़ी बहुत थी, और हम देखते आ रहे हैं कि केपी शर्मा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी हैं, तो उनका वो ही हैज बीन सॉफ्ट ऑन चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे लग रहा है कि और जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप की जो टेंडेंसीज थी इस सरकार में वो सामने निकल कर भी आ रही थी। और ये जो बैन था, सोशल मीडिया बैन, दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। इसके बाद लोगों ने बर्दाश्त करना छोड़ दिया, क्योंकि एक हद तक ही अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को जनता बर्दाश्त करती है। और आपने एक ही दिन में 26 ऐप्स जिन पर पूरा दारोमदार है अभी पूरी लाइफ का, उसको आपने अगर एक दिन में ही बैन कर दिया तो जाहिर सी बात है एक आक्रोश आएगा, बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। आजकल कोविड के बाद से क्लासेस भी हो रही हैं, स्कूल चल रहे हैं पूरा इंटरनेट के, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए पढ़ाई हो रही है, बहुत चीजें हैं, बिजनेसेस हैं। तो वो आपने एक साथ अपने करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट और उसके रिलेटेड जो डिस्कशंस हो रहे थे लोगों में, और महेश जी ने भी कहा कि भाई ये जेनजी जो है ये पली बड़ी है उन सपनों को लेकर कि एक चेंज आएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अब जब वो नहीं हो रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, वो डिस्कशन कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया उठाकर। तो मुझे लगता है चाइना को यहाँ पर धक्का लगा है, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने नीति अपनाई थी केपी शर्मा ने, वो काम नहीं आई, और कहीं ना कहीं जो अस्थिरता पैदा हुई है उसका फायदा शायद वेस्ट को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है अभी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। जी जी कोमल जी, यस एक्चुअली व्हेन गाजी साहब ये कह रहे हैं कि चाइना पे केपी शर्मा ओली सॉफ्ट रहे होंगे, तो कुछ यू नो after a few days KP Oli was planning an official visit to India. So नेपाल का संबंध दोनों तरफ अच्छा रहा है और रहेगा। ये चाइनीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी लाभ हमें लेना चाहिए, बिकॉज वी आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड वो हिंदुत्व मूवमेंट एंड हमारा वो सांस्कृतिक जो संबंध है इंडिया से, वो हिस्टोरिकल रोटी बेटी का संबंध जो हम कहते हैं, इससे भी हमारा कुछ अलग तरह का संबंध है। हमारा संबंध जो चाइना से रहा है वो डिफरेंट लेवल का है, और जो इंडिया से रहा है वो डिफरेंट लेवल का है। इससे उस पे कुछ उतना ज्यादा असर नहीं है। जो आपने जो टिकटॉक की बात कही, ये टिकटॉक का नेपाल पे कांटेक्ट पॉइंट है, और ये सेंसरशिप का बात है, ये चाइना नेपाल कनेक्शन का बात नहीं है। नेपाल गवर्नमेंट चाह रहा था कि उसको कुछ अपर हैंड मिले सेंसरशिप का, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ओली गवर्नमेंट चाह रहा था कि उसको टिकटॉक जैसे टिकटॉक पे मिल रहा है वैसे ही फेसबुक और अदर पे मिल जाए, क्योंकि ये जेनजी was organizing a kind of exposing nepo babies trend on TikTok and other social media platforms. So they wanted to have certain kind of control over the use of social media,
and they imposed very. I do not go by what they have done. उससे मैं सहमत नहीं हूँ. उस पे इन लोगों ने वो किया. लेकिन ये this thing became a context for Western forces, maybe some other forces who were not taking our 2015 constitution very favorably, कि कोई ऐसा वो हमारा पड़ोसी मुल्क रहा हो जिसे हमारा वो सेकुलरिज्म का प्रोजेक्ट से वो नाखुश हो. उन लोगों ने भी ये मूवमेंट पे अंडर द कवर ऑफ JNG, they may have infiltrated and they may have done something, some sort of harm to bring about this chaos, and we have really felt paralyzed because of this. चलो बिल्कुल. अब महेश जी, सवाल यह है कि मतलब अभी तो जो केपी शर्मा ओली ने भी मतलब रेजिग्नेशन दे दिया है, रामचंद्र जी ने भी, राष्ट्रपति ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है. महेश जी, सवाल है कि क्या नेपाल में जो राजनीतिक अस्थिरता है तो उसके बीच चीन के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर आप देख रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि भारत के साथ उसके संबंध का कोई असर पड़ेगा? राजनीतिक जो संकट है उसका भारत के साथ नेपाल का कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है सर? अभी जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो दिखाई दे रहा है देश के अंदर, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को मिटिगेट नहीं किया, इसको मैनेज नहीं किया, तो बिल्कुल चाइना भी इसका एडवांटेज लेने के लिए आगे आएगा और हिंदुस्तान भी इसको देखेगा. और चाइना, हिंदुस्तान ही नहीं, कोई भी मुल्क जो नेपाल से बाहर है वो अपने एडवांटेज को ढूंढेगा. इसलिए आवश्यक ये है कि अभी जो कैओस जैसे बोल रहे हैं हम, ये कैओस, यो वैक्यूटी, यो वैक्यूम जो दिख रहा है, इसको जल्द से जल्द एड्रेस करने की आवश्यकता है. तो यहाँ की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी क्या सोच रही है कि अभी राष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन ऑफिशियली दिया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जो भी हो, पुष्टि हो तो भी हो, नहीं तो नहीं. तो एक सेना के इनिशिएटिव में एक ऐसे नेशनल गवर्नमेंट, एक एडहॉक गवर्नमेंट, एक केयरटेकर गवर्नमेंट की संरचना तुरंत बने, इसमें डिले न हो, इसमें डिले न हो, और उसके तत्वावधान में एक नया चुनाव करके एक फ्रेश मैंडेट आए जिसमें जिनजी के अपने कैंडिडेट भी अकोमोडेट हो. तो ऐसी चीज जितनी जल्दी बने उतनी इस देश की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, डाटा सिक्योरिटी के लिए और स्ट्रेटेजिक भलाई के लिए आवश्यक है. ये सब इंटेलेक्चुअल्स का भी मत है और हमारा भी मत है. और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, हम जो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, नेपाल की अपनी अस्मिता की बात कर रहे हैं और प्रो चाइना, प्रो इंडिया की बात कर रहे हैं, मुझे क्या लगता है कि ये जेनजी से इस चीज को उतना ज्यादा मतलब नहीं है. ये जेनजी अपने को ग्लोबली सोचते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, कैसे हम ग्लोब के साथ जैसे कदम ताल करके जा पाएंगे, या घर बैठे हम कैसे ऑनलाइन व्यापार कर पाएंगे, ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे. और जैसे अमेरिका में और यूरोप में एक विद्यार्थी, एक नौजवान जैसे जीता है, वैसे इसी समय अब कैसे जी पाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी के ये हिमायती है. तो इस चीज को जब बैन लगा तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा. तो इसलिए ये नेशनलिस्टिक नैरेटिव से ऊपर ये अपॉर्चुनिटी की नैरेटिव है और एस्पिरेशन की नैरेटिव है. उस लिहाज से हमको इस चीज को आकलन करना पड़ेगा. चलो बिल्कुल. मैं भी एक सवाल पूछना चाहता था कोमल जी से भी और महेश जी से भी, क्योंकि हम अभी जाहिर सी बात है नेपाल से बाहर हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं. अभी न्यूज में आ रहा है कि आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं अभी वैक्यूम फिल कर रही है टेम्परेरीली. दे आर टेकिंग ओवर बिकॉज गवर्नमेंट का वैक्यूम है. तो क्या सेना को लेकर इस तरह का कोई पहले रहा है कि भाई वो टेम्परेरी उन्होंने फिलअप किया है, या हो सकता है कि लंबे समय तक चले? इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए ठीक है, या वो अभी बेहतर रहेंगे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से, या वो ठीक नहीं है? तो ये सेना को लेकर आपका क्या व्यू है, मतलब कोमल जी का और महेश जी का? मैं कहूँ तो ऐसा कोई प्रैक्टिस पास्ट पे नहीं थे. पास्ट में जब बिफोर 2015 कॉन्स्टिट्यूशन, once we had Chief Justice leading the government of national consensus. ये खिलराज रेग्मी ने एक बार ऐसा किया था. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सेना, वो मिलिट्री ने जब वो लेते हैं तो इससे कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इनहैंस नहीं होते हैं. चलो महेश जी, मिलिट्री का एक अलग अंदाज है. गाजी साहब का जवाब शॉर्ट में 30 सेकंड में, 30 सेकंड प्लीज. मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सेना उस मनसाय में नहीं है. मैं क्या बोल रहा था कि तात्कालिक इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सेना एक प्रोएक्टिव, एक कैटलिस्ट की भूमिका में आएगी.
लेकिन सेना के अंदर वो प्रेसिडेंस भी नहीं है, वो अभ्यास और वो मेंटालिटी भी नहीं दिखती कि हम जैसे बांग्लादेश की तरह और पाकिस्तान में था उस तरह से सत्ता अपने हाथ में ले और इसको चलाए, ऐसा मनसा नहीं है। लेकिन अभी अभी गार्जियनशिप में एक जो वैक्यूम दिखा है उसमें सेना एक आशा का केंद्र है, तो सेना कोई प्रोएक्टिव लेकर के तात्कालिक मैनेजमेंट के लिए काम करें, ये एस्पिरेशन है। वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। हाँ जी। ઓકે, એટલે ત્રણેય એક્સપર્ટનું જે પ્રમાણે કેવું છે, ત્રણેય એક્સપર્ટ દિલ્હીથી ગાજી સાહેબ છે, કોમલજી છે અને મહેશજી છે, જે કાઠમંડુથી સીધા આપણી સાથે જોડાયા છે. એમણે કોમલ જે પ્રમાણે કહ્યું કે ઇન્ટરનેશનલ કારણો પણ છે અને કેટલાક લોકલ કારણો પણ છે. એમણે કહ્યું કે ક્યાંક અસંતોષ છે ઝેનસીમાં, ભ્રષ્ટાચાર અને બેરોજગારી પણ એક કારણ છે, પણ શ્રીલંકાની અસર જે બાંગ્લાદેશ પર જોવા મળી ને ત્યારબાદ એની સીધી અસર કાઠમંડુ પર જોવા મળી છે. ઇન્ડિકેશન મળે છે કે એક ડિઝાઇન બનાવી હોય અને એક પ્રી પ્લાનિંગ આખું એક આ મુવમેન્ટ છે અને ઝેન ઝી જે રસ્તા પર ઉતર્યું છે એને કંટ્રોલ કરવું મુશ્કેલ હતું, પણ અત્યારે હવે સિનારીઓ થોડો બદલાયો છે, ઝેન ઝીથી આગળ ગયો છે. અને મહેશ પોંડિયાલે કહ્યું તેમ 2005માં પોલિટિકલ મુવમેન્ટ થઈ હતી, નવું સંવિધાન બનાવવામાં આવ્યું અને એમાં ક્યાંક ઝેન ઝીને ઘણી બધી અપેક્ષાઓના સપના બતાવવામાં આવ્યા કે નેપાળ છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ બનશે, તમારા સપનાઓ પૂરા થશે, અને એ સપનાઓ પૂરા ન થતાં ઝેનઝીમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો. ઝેનઝી રસ્તા પર ઉતર્યું અને વિશ્વમાં પહેલું ઉદાહરણ છે કે આ ઝેનઝી આંદોલન થયું હોય અને સરકાર ગઈ હોય એટલે આ આંદોલન અન્ય જગ્યાએ પણ અસર કરશે. ઉમર ગાઝીએ કહ્યું તેમ મિનિસ્ટરના જે રેઝિગ્નેશન આવી રહ્યા છે અને જે લોકો મરી રહ્યા છે, લોકોનો જે મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે, એ ચોક્કસ લોકશાહી માટે નુકસાન કરતા છે. આર્મીએ ટેક ઓવર કર્યું છે અને લોકશાહી સામે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. આ એક દિવસની તૈયારી નથી, પણ જે અસંતોષ હતો, કરપ્શનને લઈને અસંતોષ હતો અને પ્રો ચાઇના સરકારનો ક્યાંક નજરિયો જોવા પણ મળ્યો છે. આગળ જે સરકાર હતી એનો પણ જોવા મળ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર બેન મૂક્યો એ ગાઝી સાહેબનું કહેવું છે, પણ ટિકટોક પર બેન નથી મૂક્યો, એની પાછળના કારણો પણ એમણે કહ્યા. એટલે હવે જોવાનું રહેશે કે ઝેનઝીથી શરૂ થયેલું આ આંદોલન, આ સરકાર તો કદાચ ગબડે છે, પણ હવે નવી સરકાર આવે છે, રાજાશાહી આવે છે કે શું આવે છે, આવનારો સમય બતાવશે. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ. ઉમર ગાઝી, મહેશ પોંડિયાલ અને કોમલ ફુયાલ तीनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. જી. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી ચાઇનાની ચર્ચા, જે પ્રમાણે નેપાળમાં જે હિંસા અને રાજકારણ થયું છે, આ નેપાળ અને હિંસાનું રાજકારણ પાછળનું કયું કારણ છે. ફરી મળીશું એક નવી ચર્ચા સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.